Hello students, this time we are going to study the next topic from this chapter, resources and development, classifications of soil. As in the previous classes you have read a lot about the soils conservations, classification of soils. Here once again you have to read the classification of soils on the basis of relief features, landforms, climatic regimes, vegetation types. These all qualities have contributed in the development of various types of soil. Now here you have to start to study this point first from alluvial soil. What is alluvial soil? Let's see. You see here in this figure, this is a figure for alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. In effect, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. ये जो है ये काफ़ी एलुवियल सॉइल जो है इसकी स्प्रेड जो है काफ़ी बृहद है एंड दिस इज आल्सो नोन एज वेल इम्पोर्टेंट सॉइल एंड इन द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स the alluvial soils is in very spreading form. These have been deposited by, and these soils is a deposition of three important Himalayan river system, and the three rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. ये जो soil हैं ये राजस्थान और गुजरात में भी एक संकरे कॉरिडोर के माध्यम से वहाँ भी एक्सटेंड होते हैं. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi. जो alluvial soil है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाया जाता है, जहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाज भी होते हैं. उस एरिया में भी प्रमुखता पूर्वक एलुवियल सॉइल्स पाया जाता है. द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड. जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत से प्रकार के प्रोपोर्शन एक इसमें होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का एक अच्छा खासा अनुपात इसमें पाया जाता है. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जो एलुवियल सॉइल है इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोपोर्शन जो कि रिवर, वैली, सॉइल पार्टिकल्स ये सब इसमें बिगर साइज में अपीयर होते हैं. इन द अपर reaches of the river valley, that is near the place of the break of sea, or especially you can
found all these type of soil to the river valleys near the place of the breakup flow. The soils are coarse, and such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chaos and Tarai. और इस तरह के सॉइल जो हैं ये समांतर पिडमॉन्ट प्लेन्स में पाए जाते हैं। जो पिडमॉन्ट प्लेन्स होते हैं उनका नाम है डोअर्स, चाओस और तराई। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द basis of their age. Now here it is said that इस जो साइज़ है ग्रेन्स का, कंपोनेंट्स का, ये सब साइज़ से काफ़ी दूर जो है सॉइल को उसके एज के ऊपर डिस्क्राइब किया था। कितना पुराना उसका एज हो गया, कितना एज हो गया, उसके ऊपर उसको डिस्क्राइब किया था। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial, बांगर and new alluvial खादर। और इस एज के अनुसार जो है alluvial soil can be classified, इसको क्लासिफाइड किया जाता है ओल्ड alluvial में जिसको बांगर बोलते हैं, न्यू alluvial में जिसको खादर बोलते हैं। Bangar soil has higher concentration of conker nodules than the khadar. It has more 9 parties and is more fertile than the bangar. जो बांगर सॉइल है ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल है खदर की अपेक्षा, और इसमें जो फाइन पार्टिकल्स मुख्य रूप से जो हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं बांगर के तुलना में। अर्थात कह सकते हो कि बांगर के तुलना में जो खादर होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, बेहतर होते हैं। Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, land, other cereals and pulse crop. Alluvial soil जो होता है पूर्ण रूप से बहुत ही फर्टाइल होता है। मोस्टली इस सॉइल की जो प्रोपोर्शन इसमें मुख्य रूप से जो मिला हुआ है उसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम्स और भी बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कि मुख्य रूप से शुगर केन की ग्रोथ को, पैडी की ग्रोथ को, वीट के ग्रोथ को एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स और भी बहुत से पल्स क्रॉप्स की दलहनी फसलों का लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensely cultivated and densely populated, and soil in the drier areas are also more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. ये जो होते हैं alluvial soil ये मुख्य रूप से काफ़ी कल्टिवेटेड होते हैं, डेंसली काफ़ी कंजस्टेड होते हैं और ड्रायर एरिया में अल्काइंस और भी बहुत से प्रोडक्टिव फार्म्स को डेवलप करने के लिए इसकी बेहतर स्थिति में फर्टाइलिटी रेट और बढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है।
black soil. These soils are black in color and are also known as रेगर soil. जो ब्लैक सॉइल होते हैं कलर में ब्लैक होते हैं और ये रेगर सॉइल के रूप में जाने जाते हैं. ब्लैक सॉइल की is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. ब्लैक सॉइल को कॉटन के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. और ऐसा विश्वास माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, पेरेंट रॉक के साथ साथ जो मटेरियल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. द टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रफ basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. जो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड, जो रीजन्स इसका स्प्रेडेड है डेक्कन प्लेट्यू की तरफ, जिसमें बहुत से ज्वाला फ्लो होते हैं और इसीलिए स्पेशली ये महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की एरिया को ज़्यादा ये प्लेट्यू कवर भी करते हैं. उसी एरिया में इस तरह के प्लेट्यू की मात्रा भी ज़्यादा है. तो वी कैन सी दैट द डेक्कन ट्रैप रीजन spread over northwest Deccan Plateau and it is made up of lava flows. तो ये सारे जो है ब्लैक सॉइल के रीजन्स हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस lines you can understand the real value of the black soil.